حضور کی ایک فیض جاریہ ہے نبوت حضور کی، اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب، اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی، ہمارے لیے بہت ہے محبت حضور کی، حضور کی رحمت کا چند قدر پیش خدمت ہے آپ کے سامنے، خاموش رہیں۔ السلام علیکم اس نصیب ہے آپ کو آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں منایا گیا ہے۔ اس نصیب ہے وہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، یہاں وہ یہ آدھی آپ کا آنا بھائی سے رحمت ہے، سبحان اللہ، یہاں آنے خدا مائز میں کرے گا، کیونکہ ہم نبی کے چاہنے والے، سبحان اللہ، ہمارا ایمان جس کا نام محمد رسول ہے، سلمہ نہیں تیرے چیزا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے آگے نام محمد لکھا گیا ہے، جیسے کہ کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے۔ یوں تو 1,24,000 کم پیش پیغمبران اسلام اس سرزمین پر آئے، ہر کوئی نے توحید کا پیغام لے کر آیا ہے، مگر مکمل سرکار دنیا سنم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہے۔ بنی اسرائیل کے پیغمبران اسلام کو جو شرف حاصل نہیں تھا وہ محمد امتیہ کو حاصل، اس لیے کہ 1,24,000 کم پیش پیغمبران اسلام آئے تو سے، مگر کسی کو وہ معراج کا شرف حاصل نہیں ہوا، اگر حاصل ہوا ہے تو سرکار دنیا سنم اور اس کے بعد ان کے امت کو ہوگا۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ، محمد امت ہے کہ نہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہے جو محمد امت ہے کہ نہ پیدا ہوئے، یعنی جو شرف بنی اسرائیل کے پیغمبران اسلام کو جو حاصل نہیں تھا وہ تمہیں حاصل ہے۔ اللہ کو اگر مکمل طریقے سے اگر سمجھائیں تو اللہ کے رسول نے ہی سمجھایا، اس لیے اللہ نے آپ کو پیغمبروں کا پیغمبر بنا دیا۔ یوں تو کافی پیغمبر اسلام آئے 1,24,000 کم پیش، مگر ان میں اور ہمارے نبی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارے نبی نے تکلیفیں سہن کرنا پسند کیے مگر بددعا نہیں دی، اور جو پہلے پیغمبر اسلام آئے ذرا سی تکلیف ہو گئی تو اللہ کے پاس دعا کر دے، اللہ یہ لوگ ستا رہے ہیں ان کو غارت کر دو، مگر ہمارے نبی نے کبھی لوگ ایسے بھی تھے جب جاتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، پتھر پھینکتے تھے، دھول پھینکتے تھے، صحابہ اکرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے ان کے لیے یہ ہلاک ہو جائے، ہم آمین کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا معلوم ہے، اگر یہ مجھے سمجھتے
تو یہ ایسا نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آئے گا سبحان اس وقت وہ روئیں گے, اللہ ہنسیں گے کم, روئیں گے زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن حسنہ سے دین کو پھیلایا, کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ہے, ہر دم سب کے بھلائی کے لیے دعا کرتے آئے. ایک بار کا واقعہ ایسا ہے, ایک یہودی نے آپ کو دعوت دیا, ایک صحابی رسول کو ساتھ میں لے کر آپ یہودی کے گھر جاتے ہیں, دسترخوان لگایا جاتا ہے, کھانا سامنے آ جاتا ہے, تو ساتھ میں جو صحابی رسول تھے لگتی نا جلدی بھوک لگتی, جلدی سے ہاتھ ڈال کے جب سرکار نے جب حکم دیا تو ان کو بس بدلے ربی ہو گیا, اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ اس میں زہر ہے, فوراً کہہ دے ٹھہرو تب تک وہ حکم نکل کھا چکے تھے, وہ زہر اتنا یہ تھا زبردست کہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی سازش ہے, یہودی کو بلا کر پوچھا آپ دعوت دے کر ایک کام کرتے ہو, تو یہودی کو معلوم نہیں تھا کہ یہودی کی عورت بے خوف قدر آ کر کہی یہ میری سازش ہے, یہ میں نے کام کی, آپ جو چاہے مجھے سزا دے سکتے ہو. میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے اس میں آ کر آپ یہ کریں, یہ میری سازش تھی مارنے کی. جب نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا فیصلہ مدینہ منورہ میں ہوگا. جب آئے یہودی بھی آیا, اس کی گھر والی بھی آ گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے معروضہ رکھا گیا, صحابہ کرام کے سامنے. کہ اس یہودی کی عورت نے ایسی ایسی سازش کی جس میں اپنا ایک بھائی ہلاک ہو گیا, اس کو کیا سزا دینا چاہیے؟ تو ہر کوئی نے کہا, اس وقت عرب کا قانون ایسا تھا کہ موت کی سزا موت, کس نے جان سے مرا دوسری جان سے مرا. ہر کوئی نے یہی فیصلہ کیا ایک ہمارے بھائی کی اس نے جان لی تو اس کی بھی جان لینا. اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بارے میں میں بھی کچھ میرا معروضہ رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو معاف کیا جائے. وہ جو یہودی تھا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا, اور سردار کی وہ عورت تھی. ایک قبیلے کے سردار کے پیچھے ہزاروں لوگ رہتے, اور وہ یہودی کی عورت بھی دیکھ رہی تھی, اور یہودی بھی دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے, یہ کیسے سردار ہے. ہر کوئی نے حکم دیا کہ اس کو جان سے مارا جائے, اور ان کا سردار کہہ رہا ہے ہمیں معاف کیا جائے. ہر کوئی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, ہر کوئی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, سرکار کے بات کو لبیک کا. یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی سوچنے پر آمد ہو رہا ہے یہ کیسے سردار ہے. اور اس نے اسلام قبول کیا, دیکھو ایسا بھی دین کو پھیلا ہے. ایسے نبی کے ہم لوگ امتی ہے, تم ان کی امتی ہو صحیح معنی میں, اور کوئی امتی نہیں ہو سکتا. بدلے ربی ہو رہا ہے تم پر, سرکار کا کرم ہو رہا ہے. میں حقیقت سے آپ کو آج ہر نبی نے اپنا کلمہ اپنی زبان سے کہا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, داؤد خلیفہ تھا. ہر کوئی نبی نے اپنا کلمہ اپنے زبان. میرے نبی کا کلمہ تحریری تھا, اس پر لکھا ہوا تھا, پیٹھ پر لکھا ہوا تھا. اس لیے لکھا ہوا تھا کہ آنے والے امتوں کے دل میں ہونا, جو سرکار کے پشت پر کلمہ تھا آج ہمارے دل میں آیا, وہ ہے امتی. اور
और उम्मती के लिए आया है। इन्ना देना कल कौसर, अरे मोहम्मद मैंने तुम्हें जामे कसीर अता किया, रोज़े कौसर पर आपको मुकर्रर किया, जिसको तुम पिलाओगे उसकी शफाअत आप लोग हो खुश नसीब है। आप लोग जो सरकार के पुष्ट पर करना था वो आपके दिन में आया, और जिसके दिन में आया वो है उम्मती। नारे तकबीर, नारे इशारत, सरकार की आमद, मखमली की आमद। खुश नसीब है आप लोग। उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कि सरकार कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे नबी बचाने वाले। अरे कहाँ मिलेंगे, कैसा तुम जाएंगे? अरे खुश नसीब है आप लोग। आप जा सकते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। आप जा सकते क्योंकि आप निस्बत वाले हो, आप निस्बत वाले हो, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। चल के मैदान में अगर ढूंढना है तो सबसे पहले तीर को ढूंढना पड़ेगा। ले बार बार बैठ के कहा जाता है, क्या बात है, देखो तीर को देखो ताकि ये सूरत तुम्हारे नजरों में बरकरार रहेगी। हशर के मैदान में आपको ढूंढने के लिए आप दावा करेंगे अल्लाह से, या अल्लाह हमने तेरा और तेरा अली का कलमा पढ़कर ईमान लाए। तो अल्लाह पूछेंगे ना तुम्हें किसने कलमा पढ़ा है, तो बोलना पड़ेगा, तीर का नाम बताना पड़ेगा, गुनिया मुबारक पेश करना पड़ेगा। तेरा ऐसा था, उनके लिबास ऐसा था, उनका नाम ये था, तो जैसा तुम बताते जाएंगे वैसा वैसा गुनिया बनते जाएगा। सुभान अल्लाह। पीर का दामन, पीर का दामन, पीर का दामन। जब आपसे पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेंगे क्या यही है क्या, और पीर को भी पूछा जाएगा कि यही है कि जिसको आपने गवाही होगी। वरना हशर के मैदान में 1,24,000 कमे पेश पैगंबरान इस्लाम दे होगे, उनकी उम्मती होगी और हमारे नबी की उम्मती होगी। करोड़ों का खरबों का मजमा होगा, अल्लाह अर्श के कुर्सी पे रहेगा और हम निस्बत वालों की तरफ वो मुखातिब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निस्बत वाला सुभान अल्लाह, चाहने वाला आ रहा है, सुभान अल्लाह, पढ़ने वाला है, क्योंकि हम दिल से कलमा तो सभी पढ़ते, तुम्हारे पढ़ने में और के पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क है। दिल की जुबान से करने की अदाई करते हो, दिल की जुबान से करने की अदाई करते हो। हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं, खुदा हमको याद करना बड़ी बात है। वो तरीका मिला है, फजले रब्बी तुम पर हुआ है, सरकार का करम हुआ है। जो बंदा दिल की जुबान से रसूल को याद करता है, उसी बंदे को वो भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करता है। जो बंदा दिल की जुबान से, तन की जुबान से नहीं, दिल की जुबान से, तन की जुबान के साथ में नफ्स लगा हुआ है, जिंदगी लगी हुई, झूठ बात करते, महफाना की बातें करते, दुनिया की तारीफ करते, अपनी तरफ वो जबान के नवस नहीं आ सकता है। दिल की जुबान खुदा की जुबान है, उसकी जुबान से उसको याद करने की बात है। तुम्हें वो तरीका मिला, जो बंदा दिल की जुबान से रसूल याद करेगा, उसी बंदे को वो भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। वरना खुदा को कौन नहीं याद करेगा? चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात हर कोई अपने बोले में खुदा का जिक्र कर रहा है, खुदा को याद कर रहा है, हर कोई को खुदा याद कर रहा है। अरे जिसको खुदा याद करे उसका बेड़ा पार। आप लोग खुश नसीब है, आपको वो तरीका मिला है जिनकी जुबान से करने की याद, अदाई करने का, लेकिन तुमको याद करेगा, तुमको नजर के सामने आएगा, रखेगा और तुम्हारी जिक्र खुदा खुद करेगा। तरीका मिला है, खुश नसीब है जो इस सिलसिले में जिनको ये मिला है। वरना ये तो सिलसिले हजारों हुए, सारे सिलसिले जो है हमारा सिलसिला नूर बाबा नूर है, इसलिए कि हमारा सिलसिले में खुदा को जानने की, पहचानने की और अपना बनाने की तारीफ है। यह कुरान को समझाया जा रहा है, हदीस को समझाया जा रहा है। कुरान बंदे के हाथ में जैसा कह रहा ऐसा हो रहा है कि नहीं, तुम्हें प्रैक्टिकल में लाया गया। अगर तुम अमल करके देखेंगे तो यकीनन तुम्हें रिजल्ट मिलेगा
तो तुम जाके कहोगे कि अल्लाह के मजीद पत्ता भी नहीं। सुभान अल्लाह खूब जिक्र करो, खूब जिक्र करो। जिक्र करने वालों की जिक्र खुदा खुद करता है। उसका घर है, उसके घर में तुमको याद करने का तरीका मिल गया। हर वक्त बंदे के दिल पर खुदा की नजर होती है। दिल में अगर उसकी याद है तो उसी बंदे को याद करेगा। और याद रखो, हमें कामयाबी कामरान देने वाला खुदा कोई हमसे जुदा नहीं। लोग खुदा को कोई हरम में ढूंढ रहा है, कोई सनम में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है। हम खुदा को खुद में ढूंढ रहे हैं। कुरान में खुदा खुद पता बता रहा है। चल आए तो मैं आपके सामने पेश करूं, इन अल्लाह वाला कुल्ले शै कोई सुभान अल्लाह। हर शय में हूँ, हर शय मेरे में है। हर शय से जुड़ा चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात इंसानात वो सब में है। तो मालूम पड़ेगा आयत गवाही दे रही कि खुदा हमसे जुदा नहीं, हम उससे जुदा नहीं। आगे अल्लाह कह रहा है वफी अनफुसिकुम अफलातुसिम, क्या तू नहीं देखता तेरे जरे जरे में मेरा मुकाम है, तेरे ख्यालों में मेरा मुकाम है, तेरे सांसों में मेरा मुकाम है। आप सांस ले रहे, आपकी क्या मजाल है? अरे वो दे रहा है, वो छोड़ रहा है, अरे उसी के सांसों में उसी को याद करें। खुश नसीब है आप लोग, इसलिए कि कल बरोजन नैसर परवरदिगार आलम एक एक सांस का हिसाब किताब देने वाला है। आज हमारे सांसों में अल्लाह रसूल की याद होगी, हम क्यों डरेंगे? अगर प्रैक्टिस होगी तो हम बेखबर दर्ज के कह सकते कि अल्लाह मेरे सांसों में तेरा और तेरा हबीब का जिक्र हम। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह कह रहा है वह माकुम वैनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे ये आयत मुकम्मल गवाही दे रही कि खुदा हमसे जुदा नहीं, हमसे जुदा नहीं। सिर्फ बोल रहे, इकरार है, ये इकरार है, तस्दीक नहीं। पीर के दाद को किया, ये आयतों की तस्दीक कर रहा है। सुभान अल्लाह। समझाने के लिए, सुभान अल्लाह। समझाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे तस्दीक कराई जाती है, साबित किया जाता है कि वो खुदा तुम में है, तुम उससे जुदा नहीं, वो तुमसे जुदा नहीं। अल्लाह ज़ात है, समझेंगे हम, ये भी सरकार का कदम है। अल्लाह ज़ात है, सिफत अल्लाह बनकर बंदे के वजूद के अंदर हरकत कर रहा है। जैसे कि शरीयत के जो अल्लाह के नयन नाम है, तरीकत में वो सिफत रब्बानी, रब की सिफत है। जो नयन सिफत में 7 सिफतें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभान अल्लाह। सुभान 7 सिफत है। एक हलीम की सिफत है, एक बशीरुन की सिफत है, एक करीमुन की सिफत है, एक समीउन की सिफत है, एक अलीमुन की सिफत है, एक करीमुन की सिफत है, एक कदीरुन की सिफत है और एक मुरीदुन की सिफत है। तो सिफतों को इस कदर डिवाइड किया गया। अल्लाह ताला ने नबातात के अंदर, नबातात झाड़ पेड़ पहाड़ पत्थर, इसमें अल्लाह ने एक सिफत को रखा, हय्युन की सिफत। हय्युन यानी जिंदापन, झाड़ जिंदा है ना, अरे उसमें भी है ना, क्या बन गया? हय्युन बन गया। उसके झाड़ के नीचे बट्टे, इतना सुकून मिलता है, झाड़ में सुकून है, वहाँ पे उसकी रहमत है। अल्लाह ताला ने हैवानात के अंदर, नेक्स्ट हैवानात के अंदर 3 सिफतों को रखा। एक हय्युन की सिफत हयाती यानी जिंदा है, बसीरुन यानी देखते हैं, समीउन बोले तो सुनते हैं, यानी वो देखते भी है, सुनते भी है और वो जिंदा है। इसलिए 3 सिफत वाला एक सिफत पर हावी है। सुभान अल्लाह। हैवानात 4 पाँव वाले जानवर, चारा खाते के नहीं, घास खाते के नहीं, पत्ते खाते के नहीं, यानी 3 सिफत वाला एक सिफत के बाद हावी है। फरिश्तों को अल्लाह ने 5 सिफतों से नवाजा, ये 3 सिफत है। चौथी सिफत है कलीमुन यानी कलाम करते हैं, अलीमुन यानी वो इल्म के रखने वाला। 5 सिफतों से शैतान को नवाजा और 6 सिफतों से शैतान को नवाजा, 5 सिफतों से फरिश्तों को नवाजा और 6 सिफतों से शैतान को नवाजा। छठी सिफत क्या है? तो कदीरुन, कुदरत का जानने वाला, आगे क्या होने वाला है उसकी खबर देने वाला। जैसे कि अल्लाह ताला ने
फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों एक पुतला बनाओ, मैं मेरा नायब बनाना सुभान चाहता अल्लाह, हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो खबर आके उनके उस्ताद मोमिनुल मरकुज से कहे, अल्लाह ताला ने ऐसा कह दिया। तो मोमिनुल मरकुज उनका उस्ताद कहता है, अल्लाह ताला से कह दो जो अल्लाह ताला इंसान को बनाने को जा रहा है, हजरत आदम को बनाने को जा रहा है, वो दुनिया में आके खून खराबा करेगा, मारामारी करेगा, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, लिहाजा हम उसकी इबादत करने से कम है सुभान क्या? अल्लाह, कह दो अल्लाह तेरी इबादत करने में कम है क्या? तो अल्लाह ताला फरमाता है इसका मैं बेहतरीन इल्म रखने वालों में से हूँ, बस हुक्म दिया बजा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, इससे मालूम पड़ा वो आगे का जानता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग गुमराह नहीं होंगे, आजकल वो हाजिरी वाले बहुत आते हैं, किसी हाजिरी के पास समझ जाओ आगे भी बता था वो शैतान के साथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 7 सिफतों से हजरत इंसान को नवाजा। 7 सिफत, 7वीं सिफत मुरीदुन, मुरीद के माने इरादापन। इरादा क्या? तो रब को पाना, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना। हम बैठ देकर मुरीद बनाने की तालीमात दे रहे। मुरीद हमारे नहीं बनना, मुरीद अल्लाह के बनना। मुरीद के माने इरादापन। इरादा क्या? तो रब को पाना। समझ में आया तो मुरीद, जान गए तो मुरीद, पहचान गए तो मुरीद, नहीं तो मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए बैठ दी गई। हक है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे इसावत, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का वो दामन। हमें है, हमें है, सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। हमारे आंखों के अंदर वैसे तो मन करे। सुभान अल्लाह, सुनो, समझो, समझ मेरा पार है। हकीकत से आशना किया जा रहा है। ये इल्म इल्म नजूनी कहते, ये सीना मसीना इल्म है। किताबें पढ़ने से खुदा मिलता तो घर के रोटी बनते। किताबों में खुदा ने, मुमीन के सीने में खुदा। ऐसे मत मुमीन मौला कामिल हमें मिला, सरकार पिलाते जान पहचान कराए मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आंखों के अंदर बशीरुल मन कर रहे। सुभान अल्लाह, अब बशीर के माने देखना, देखना बंदे की सिफत नहीं, देखना खुदा की सिफत है। हम भी अंधे थे, खुदा हम पर मेहरबान हो गया। हमारे जबान के अंदर जब खुदा मुकाम किया तो खुदा का नाम हो गया करीम बशीर, सुभान अल्लाह। यानी देखने वाला। खुश नसीब है आप लोग, आपके आंखों को खुदा ने पसंद किया, वो मुकाम किया, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो अंधा बना तो यूं समझो एक सिफत कमी की बिना पर दुनिया देखने से नहीं है ना। बशीर की सिफत तुमने आने की बिना पर तुम्हें नजर आ रहा है, तो जरा अंदाजा लगाओ। बंदे को नफ्स लाकर उसके समझ को दे दिया, बंदा ये समझ रहा क्या मैं देख रहा हूँ, यहाँ ये समझ नहीं आ रहा वो देख रहा है। नूर बनकर नजर में समाया, हमारे आंखों के न बशीर बनकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह। अल बशीर के माने देखना, अंग्रेजी में टूसी। सुनने जब मुकाम किया तो उसका नाम है बशीर, देखने वाला। वो देख रहा है, वो देख रहा है। ऐसा माइंड बना लो, अपनी नफी करने की बात है, वो देख रहा है। मेराज का वाक़े में जब अल्लाह के रसूल फरमाए तो सावराज ने पूछा यार सुल्ला अपने रब को कैसा देखा, तो आपने फरमाया आए तो रब्बी थे रब्बी, मैंने रब को रब किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हक है। आप तस्वीर बन रहा है कि मैं, मेरी आँख, मेरी जबान, मेरे कान क्या कर रहा है। अगर तुम्हारा माइंड बन जाए दिलो दिमाग की बात तो एक सब तेरे यही नहीं देख रहा, खुदा देख रहा है, वो देख रहा है, बशीरुल बनकर वो देख रहा है। तो कसम खुदा के हजारों कोसों मिलकर भी तुम्हें नजर आ सकता है। आपको हदीस सुनाओ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जुम्मा का खुतबा दे रहे थे। एक भाई आप क्या देखते, एक साहबे रसूल सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे मुल्क में इस्लामी लश्कर लेके कुछ किए थे, और ऐसी जगह ने पड़ाव डाला जहाँ पे पहाड़ी थी, और पहाड़ी थी, पहाड़ी का सहारा लेके वहाँ नमाज पढ़ने का, जुमा की नमाज।
तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा का खुतबा दे रहे थे, क्या देख रहे? पहाड़ी के पीछे से दुश्मन का लश्कर आ रहा था हमला करने के लिए। सुभान अल्लाह। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा ही देखना था, यहाँ से पुकारा के ऐ सारिया अल जबल, पहाड़ी की तरफ मुखातिब हो जाओ। जब पलट कर देखते तो दुश्मन का लश्कर था, जंग हो गई। और आप जब मदीने मुनव्वरा आते तो मेरे अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी थी, मुझे वहां सुनाई दी। क्या बात है? बोले वो बोला, अरे उसकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती क्या? वो नहीं दे सकता क्या? वो देख रहा है, अरे वो देख रहा, ये तुम्हारा माइंड बन जाए, क्योंकि बंदे को नस कराकर उसके समझ को फेर दिया गया। बंदा ये कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वरना हकीकत अच्छी है नहीं देख रहा। सुभान अल्लाह। जब मस्जिद नबवी की तामीर की गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, अभी नमाज पढ़ना है, अरे बिलाल तुम आज़ान दे दो। तुम यहाँ खड़े रह आज़ान दे दो। तो बिलाल हबशी कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं ऊंची जगह पर जाके आज़ान दूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, है बिलाल तुझे ऊंची जगह पर जानी है, उसने तू आज़ान दे दे, तेरी आवाज को अल्लाह पहुंचाएगा। इससे क्या साबित होता है? अरे अमीरुल मोमिनीन की आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया, क्योंकि वो जो साहिब रसूल थे वो हक की जंग के लिए गए थे। चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, समझ नहीं आएगा कसम खुदा की, अल्लाह का बेड़ा पार हो जाएगा। ये इल्म खुश नसीब है आपको, ये सिलसिला मिला है। ये इल्म सभी सिलसिले नहीं है, वो फोटो गिनती के पास है, और जिसके पास है वो समझाते भी नहीं। याद रखो, हम कुछ बयान नहीं देते, हम समझाते। अरे समझाना तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर मुयस्सर है, तुम्हारे अगर ख्वाहिश है, तुम्हारी अगर तमन्ना है, समझे कि नहीं? मेरे में ताकत नहीं, मैं क्या समझा सकता हूँ? मगर बदले रब्बी होता है, बोलते बोलते बोलता है, जब भी तकलीफ होती है मुझसे आता है, बदले रब्बी होता है, अल्लाह खुश होता है, सरकार दुनिया खुश होते, समझे क्या नहीं? और वो रहने डालते रहते एक के बाद एक। मेरे आशिक बैठे, मुझे समझने वाले बैठे, मेरे जुस्तजू बैठे, मुझे जानने के लिए बैठे, मुझे पहचानने के लिए बैठे, क्योंकि बंदे के दिल के बंद उसकी नजर है। मेरी बात अगर समझ में आ रही तो ये बंदे रब्बी है, क्योंकि तुम्हें रब के तरफ मुखातिब किया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे रसूल के तरफ मुखातिब किया जा रहा है। हमारी बात हर कोई को समझ में नहीं आ सकती, किसी के समझ में आ सकती जिसके समझने की बात आ रही। ये बंदे रब्बी है, वो कायनात का मालिक सरकार दुनिया सलाम हमारे मजलिस में जलवा अफरोज तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।